Good morning, students. I, Mrs. Pratibha Sharma, welcomes you all to my English classes. Today, we are going to continue with your textbook, Honeydew's third chapter, Glimpses of the Past. In this chapter, the pictures and speech bubbles will help you understand of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. So you all can see page number 41 of your textbook Honeydew. Now students, you can see the heading is Dissatisfaction 1835 to 56. Education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. We should teach natives through the English language. I agree. English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. We must educate our brothers and try to improve their material conditions. For that, we must convey our grievances to the British Parliament. By 1856, the British had conquered the whole of India. They cared little about the needs of Indians. Our kings have become puppets and we have lost our old jobs and lands. They are converting our brothers. You only talk, do something to drive them out. So, students, in these pictures and bubbles, you can see that Lord Macaulay is having a conversation with his ministers and other people famous in the society. ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले कौन थे? ही वॉज अ सेक्रेटरी एट द वॉर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. वो जो थे एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे एंड ही वॉज अ विग पॉलिटिशियन ऑल्सो. ही रोट एक्सटेंसिवली एज एन essayist. So in 1835, in the year 1835, लॉर्ड मकाले जो कि एक ब्रिटिश सेक्रेटरी थे, ही सजेस्टेड दैट द मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया शुड बी इंग्लिश. उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया कि जो इंडिया है उसमें जो एजुकेशन होती है उसका मीडियम इंग्लिश होना चाहिए. द प्रपोजल वॉज कैरिड फॉरवर्ड. द एम वॉज टू प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ क्लर्क्स टू असिस्ट द ब्रिटिश. एक्चुअली में क्या था कि मकैले जो थे इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में लाके अपनी ही एक फ़ौज तैयार करना चाहते थे जस्ट टू असिस्ट द ब्रिटिश, यानी कि वो अपनी ब्रिटिश सेना को ही और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते थे. इट हैपेंड बट इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. ऐसा हुआ भी जब उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को जो था एजुकेशन का मीडियम बना दिया, तब ऐसा हुआ भी कि बहुत से लोग, बहुत सी जो नई यंग जनरेशन्स थी उनकी फ़ौज में शामिल हो गई. लेकिन उसके साथ साथ अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स मीन्स इंटेलिजेंट पीपल, वो भी प्रोड्यूस हुए. सम ऑफ देम ट्राइड टू एजुकेट द मासेस. उनमें से कई ने, जो मासेस थी, मासेस मतलब कि जो पब्लिक थी, ग्रुप ऑफ पीपल थे, उस समय के जो सिटीजन्स थे, उनको एजुकेट किया. Some decided to convey the grievances of the people to the British Parliament. और उन इंटेलेक्चुअल्स में से कुछ ऐसे भी हुए, उन्होंने जो आम जनता थी, ग्रीवेंसेस मीन्स दुख, तकलीफ, पेन्स, वो आम जनता की तकलीफ़ों को ब्रिटिश पार्लियामेंट तक भी लेके गए बिकॉज दे वांटेड टू हेल्प आउट द कॉमन पीपल.
Okay, so by 1856, the British were ruling the whole of India. Now they cared little about Indian needs. 1856 तक जो ब्रिटिश थे, उनका साम्राज्य, उनका जो राज्य था, जो रूलिंग पार्टी थी, वो होल इंडिया में फैल चुकी थी. एंड लेकिन ये जो न्यू जनरेशन्स के इंटेलेक्चुअल्स थे, उनके इस स्टेप से कि उन्होंने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनके दुखों को रखा, इनकी संवेदनाओं को रखा, इनकी तकलीफ़ों को बताया, तो वो इंडियन पीपल के लिए भी कुछ सोचने लगे थे. सो नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन come to the page number 42 and you can see the sparks. The sparks. Taxes continued to ruin the peasants in Bengal. The Santhals, who had lost their lands under new land rules, became desperate. In 1855, they rose in a rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. Discontent was brewing in the East India Company's army too. The white soldier gets huge pay, mansions to live in, servants, while we get a pittance and slow promotions. The Angrez asks us to cross the sea, which is against our religion. Who is the Topiwala to abolish our age-old customs? We must drive out the Angrez. Sipai Mangal Pandey attacked the adjutant of his regiment and was executed. Thousands of other Sipais revolted. They were stripped of their uniforms, humiliated, and put in irons. Few Englishmen had cared to understand Indian customs or people's mind. Oh, proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? What? The white man has deceived us too. Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. Yes, all my village men will be ready. Similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers. Death, death to the foreigner. The masses gave all help and shelter to the patriots. Now, students, till now we have seen that the dissatisfaction in the public began to grow. Dissatisfaction मतलब कि जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए एंड उन्होंने अपना यहाँ पे रूलिंग स्टार्ट की, तब लोगों के बीच में डिससेटिस्फैक्शन मतलब कि जो सेटिस्फाइड ना हो, जो संतुष्ट ना हो किसी चीज़ से. तो इंडियंस जो थे उस समय बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे एंड दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश. तो इस ब्रिटिश के खिलाफ जो स्पार्क्स थी, स्पार्क्स यानी कि जो अगेंस्ट में बातें होने लगीं, जो अगेंस्ट में चिंगारियाँ उठने लगीं, जो स्टेप्स लेने लगे लोग, वो 1855 से स्टार्ट हुए. अंडर द न्यू रूल्स सैंथल्स हैड बिकम डेस्परेट. जो सैंथल्स थे वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए थे और 1855 में दे रोज इन रेबेलियन एंड किल्ड द यूरोपियंस एंड देयर सर्वेंट्स अलाइक. मतलब वो इतने ज़्यादा रेबेलियन हो गए थे, इतने विरोधी हो गए थे कि उन लोगों ने यूरोपियन पीपल्स की हत्या स्टार्ट कर दी and their servants also. They started killing the European people and their servants also. The discontent was growing in the East India Company Army too. और उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें भी डिससेटिस्फैक्शन की भावना जो थी वो जागने लगी. अब ऐसे में सिपाही मंगल पांडे जो थे वो एक स्टार बन के आए एंड ही अटैक्ड द एडजुएंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड. तब मंगल पांडे ने आके यहाँ पे कमान संभाली. द इंग्लिश डिड नॉट केयर अबाउट इंडियन कस्टम्स. और उस समय उन्होंने
आके इंडियंस का साथ दिया, उनको ब्रिटिश रूल के खिलाफ एकजुट किया। एंड उस समय के जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन कस्टम्स की बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे, उनको उनकी कोई भी चिंता नहीं थी। तो इसी को दिमाग में रखते हुए जो विलेजर्स थे उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम आसपास की जितने भी विलेजर्स हैं, जितने भी गांव वाले हैं, सबको अपनी एक सेना में इकट्ठा कर लें। एंड दिस वॉज ऑल बीइंग डन अंडर द लीडरशिप ऑफ मंगल पांडे। ऐसा सब कुछ मंगल पांडे की लीडरशिप में हुआ। तो उस समय विलेज टू विलेज चपातीस जो थी, चपातियाँ जो होती हैं रोटी, वो भेजी जाने लगी एक गांव से दूसरे गांव में। एक्चुअली दैट चपातीस वॉज द मैसेज। वो चपातीस खाने के लिए नहीं भेजते थे, एक्चुअली दे वॉन्ट टू कन्वे अ मैसेज फ्रॉम विलेज टू विलेज with them that their native emperor would want their services। यानी कि उनका जो किंग है, जो उनका लीडर है, वो उनकी सेवाएं, उनकी सर्विसेज चाहता है। वो चाहता है कि वो सब लोग एकजुट होके ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ें। सिमिलरली इसी की तरीके से अ लोटस फ्लावर वॉज ऑल्सो सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। गांव से गांव तो चपातीस पास हुई, एंड फ्रॉम इंडियन सोल्जर टू इंडियन सोल्जर गुलाब के कमल के फूल जो थे, लोटस फ्लावर जो थे, वो सर्कुलेट हुए। द मासेस ऑल्सो गेव ऑल हेल्प एंड सपोर्ट। जब गांव वालों को और इंडियन सोल्जर्स को ये पता लगा कि मंगल पांडे जो हैं वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक सेना तैयार कर रहे हैं, तब सब गांव वालों ने और सब इंडियन सोल्जर्स ने उनका साथ दिया एंड जितना हो सका उन लोगों ने उनको हेल्प आउट किया। थैंक यू।